لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، شاہ محمد سرور صلی علی، شاہ محمد سرور صلی علی، جس پڑھیا اتر جاوے گا، جس پڑھیا اتر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هون من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ پہلے امتیں گناہ کرتی تھی، صبح ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس شخص نے رات کو فلاں گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے توسل وسیلے اور فضل و کرم سے اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کو دنیا میں ذلیل نہیں کروں گا، وہ جتنے بھی گناہ کرے گی میں ستار ہوں، میں ہمارے تمام امتیوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ حضرات عزیز قدر یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، دعا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کا کوئی اڑوسی پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، عزیز و اقارب بڑی سے بڑی غلطی کر جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے دل سے یہ بات رکھ کے اس کو معاف کر دے کہ میں نے بھی کل اسی چرپائی پہ سوار ہونا ہے اور آنے والا شخص مجھے معاف کرے گا۔ یاد رکھیے اگر آپ معاف کرتے ہیں، بغیر بتائے معاف کرتے ہیں، تو اللہ علیم بذات صدور ہے، وہ آپ کے اندر کے باتوں کو جانتا ہے، تو پھر جب کل وقت آئے گا یاد رکھیے وہ بھی بندے آپ کو خاموشی سے معاف کر دیں گے جن کا آپ نے حق مارا ہوا ہے۔ آج آپ معاف کریں گے تو دوسرے بھی معاف کریں گے۔ خاص طور پہ طاہر صاحب کا وہاں سے یہ پیغام تھا یہاں گاؤں کے لوگوں کے لیے، ان کا وائس میسیج بھی آیا تھا کہ میرے والد گرامی سے اگر اونچ نیچ ہو گئی ہے بشری تقاضے سے، کئی بار اڑوسیوں پڑوسیوں کے ساتھ شاید کوئی چپکلش ہوئی ہو، تو خدا را میرے والد گرامی کو معاف کر دے۔ کسی کا کوئی لین دین یہاں دکانوں کے حوالہ سے بھی انہوں نے ذکر کیا، تو ہم اولاد موجود ہیں، بھائی ریاض موجود ہیں، بھائی مظہر، جن کو اللہ نے توفیق دی آخری ایام میں اپنے والد گرامی کے پاس آئے، انہوں نے خدمت کی ہے۔ اللہ ان تمام بھائیوں کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے حوالہ سے لین دین کے حوالہ سے ان کے بیٹے موجود ہیں، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور خدا را سارے حضرات جب بھی صبر اور صبر پر رکھے عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے ساتھ اس صدمے پر ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ آپ سب احباب کے دکھ درد میں شریک کے لیے آئے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جنازے کا مقصد کہ ہم کرنے والے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے جو لواحقین ہیں، سوگواران ہیں، گھر والے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کرنے والے کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت اور انہیں صبر کی تلقین کی جائے، اور مرنے والے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ ہم
अहबाब ज़िक्र ये बुज़ुर्ग इंतहाई शफीक मिलनसार, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरे साथ इंतहाई शफ़क़त करने वाले थे। चंद दिन कबल ही काफ़ी देर इनके पास बैठा रहा। तबीयत की वजह से रात को बाद वक़्त बेसुकूनी होती है। उन्होंने मुझे कहा, जी हफ्सा न जाने मुझसे क्या गलती हुई होगी, मैं तो अल्लाह से माफ़ी तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन आप कुछ कुरान मजीद की आयतें पढ़ पढ़ कर मुझ पे दम करें कि हो सकता है मेरी ये बेसुकूनी ख़त्म हो जाए और मुझसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं क्या करता हूँ, लेकिन रात को जब मैं सोता हूँ बोलता हूँ तो पास कोई जो होता है उससे तकलीफ़ होती है। तो आखिरी लम्हे के अंदर मज़र साहब भी बता रहे थे कि आज की रात जो गुज़री है, रात 8 से 9 लेकर तकरीबन आखिरी लम्हे तक बस यही था कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी गलतियां माफ़ कर देना, मेरे गुनाह माफ़ कर देना। और जब वक्त आखिर आया तो ज़बान पे कलमा तय्यब जारी हुआ, पढ़ते पढ़ते इस दुनिया फ़ानी से चले गए। तो हज़रात गिरामी, ये जो आखिरी लम्हा होता है ना, ये इंतहाई कठिन होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार, हमारे आका गमखार, मदीना के ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे उस लम्हे से जिस लम्हे मौत होती है, जब जिस्म रूह जिस्म से निकलती है, और ये सकरात का जो लम्हा होता है, अल्लाह के नबी ने भी इससे पनाह मांगी। तो जो है वो अपने वक्त गुजरती है, अगर वालिदैन वहाँ उनको अच्छे राह पे चलाने वाले हों, उनकी तरबियत करने वाले हों, तो फिर औलाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में उसी नहज पे, उसी पैमाने पे, उन्हीं रहनुमा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाला से बेशुमार अहादीस हैं। फरिश्तों का जो फजीलत आदम अलैहिस्सलाम को थी वो इल्म की बुनियाद थी। और फिर तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है। और ये उलूम जो है, ये इसकी इब्तिदा जो है माँ की गोद से होती है। माँ की गोद में बच्चा जो परवरिश पाता है, माँ जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है, बच्चा उसकी नकल कर रहा होता है। और वो नकल करते करते आखिर जो है, आपने वो भी सुना होगा कि एक बच्चे को जो नेक साले माँ थी, वो कुरान मजीद की तिलावत करती थी, और जब बच्चा उस्ताद के पास गया तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया और पूछा ये कहाँ से, तो उसने कहा कि मैं माँ के पेट में जो है माँ जब तिलावत करती थी तो मुझे वो याद हो गया। तो ये तरबियत का बड़ा असर होता है। और सामने कराम, इल्म के हवाला से मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा, वक्त मुख्तर है। जावे गौसे आज़म के हवाला से आप सारे जो है वो जानते हैं, 11वीं भी का इत्माम करते हैं, बेटे पकाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को देखें। उनकी वालदा जो है इंतहाई साले, वो जो उनके बाप ने कहा था कि वो अपाज हैं, वो गूंगी हैं, वो अंधी हैं, उसका मतलब क्या था कि वो शरई उसूलों के मुताबिक उनकी ज़िंदगी है। उन्होंने कभी गैर शरई कोई हरकत नहीं की। उन्होंने शरीयत के मुताबिक अपने पाँव को चलाया, अपने हाथों से काम किया, अपनी नजरों का जो है उसकी हिफाजत की। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जब उस माँ में मुंतकिल होती हैं, और वो माँ जब गौसे आज़म की वालदा बन जाती है, तो वो अपने बेटे को एक तो कहती है बच्चे ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, और उसका असर आपने देख लिया कि क्या होता है, डाकू पे क्या होता है। और फिर माँ जो है 78 साल की उम्र में 18 साल बेटे को बगदाद में इल्म के लिए भेजती है, और फिर वो सूखे पत्ते खाकर इल्म हासिल करते हैं, और फिर लोगों को तफसीर की और हदीस की और फिर माशरत की तालीम देते हैं। ये बड़ा मौजू है। और फिर एक ऐसी माँ है कि जिसने अपने बेटे को तहसील इल्म के लिए भेजा और फरमाया कि बेटे उस वक्त तक वापस नहीं आना कि जब तक तुम तालीम पूरी करके ना आओ। अब बेटा जो है इल्म हासिल कर रहा है,
वालदा पीछे आंसू भी बहा रही है, जुदाई बड़ी मुश्किल होती है, वालदा से बच्चे को दूर होना। अब ऐसे हुआ कि 30 साल गुजर गए और जनाब इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जब 30 साल के बाद मैं ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आज मुझे फरमाते हैं कि जाओ माँ के पास। तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने ये हुक्म किया है कि वापस नहीं आना जब तक पूरा इल्म हासिल करके ना हो। और फिर वो कहते हैं कि मैं आता हूँ इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानकर, और जब घर में आता हूँ और मैंने देखा कि रात का पहर है और अभी जो है वालदा को आराम से जो है वो उसमें खलल नहीं डालना, और जब सहरी का वक्त हुआ वालदा तहज्जुद के लिए वज़ू कर रही थी, आवाज़ पानी के गिरने की आई और उसके बाद मैंने लॉक किया, दस्तक दी और वालदा ने जब दरवाज़ा खोला मुझे देखा, बच्चे पूरा इल्म करके आए हो? फरमाया नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया तो मैं आया हूँ। और फिर सामने किराम वो कहते हैं कि एक रात वालदा ने पानी मांगा, वालदा सो गई इफ्तार के साथ और मैं जाग रहा था, पानी ठंडा था, जम गया, और जब मैंने गिलास को अलग किया तो वो बर्फ बनी हुई थी, उससे थोड़ा सा जख्म आ गया। वालदा ने पूछा कि जख्म कैसा है? मैंने कहा कि ये वाक़या हुआ है। वालदा ने मेरी तरफ नज़र की और वालदा के अंदर से एक दुआ निकली और वो कहते हैं कि जो मैं 30 सालों में हासिल नहीं कर पाया था वो वालदा की इस नज़र अनायत की वजह से हासिल कर पाया।